शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ इस ग्रुप के साथ कि आज कनाडा में हमारे एक कायदीन हैं जो फिज़िक्स के साजिद दीन साहब, जियोफिजिक्स जियो फिज़िक्स दीन सज्जाद दीन साहब 95-97 के सेशन से दिस आफ्टरनून उनके वालिद साहब का जनाजा पढ़ा जाएगा। तो इसके साथ ही सारे कायदीन जो या उनके वालिदैन जो रुखसत हो गए हैं उनके लिए आप इंडिविजुअली अपने तौर पर दुआ ज़रूर कीजिएगा। With this, we come to our founders group manifesto presentation to the Canadians. We are Quaid-i-Azam University North America Alumni Association. So this is a local chapter, and we have established this chapter 2 years ago. So this is a not-for-profit registered organization in Canada. Is a brief motto or brief mission is connecting Canadians with each other who are living in North America, engaging them in constructive activities, specifically innovation and entrepreneurship, and motivating next generation of Canadians and their families. So we have programs specifically geared towards younger family members of the Canadians. So we operate under a board of 8 people, and they are here. Faisal Saeed साहब आज मॉडरेट करेंगे सेशन को इंशाल्लाह फिदा खान के साथ, जो हमारे काज़िम यूनिवर्सिटी के नॉर्थ अमेरिका के मेंबर हैं। दैन फराज शमीम हैं, इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट्स हैं। दिस माई सेल्फ, आई एम ए केमिस्ट्री ग्रेजुएट एक्चुअली। सैफुल्लाह चौधरी हैं, ये DSS ग्रेजुएट हैं। आई थिंक मुर्तज़ा नूर मे नो हिम। माई इंफॉर्मेशन इज मुर्तज़ा नूर साहब जो हैं वो भी DSS के ग्रेजुएट्स हैं। उमैर सिद्दीक, ही इज़ यंग मैन, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हैं। अरशद भट्टी साहब IR के हैं। साजिदा अहमद और तारिक जो हैं ये कंप्यूटर साइंस के हैं। फिदा हमारे साथ हैं, और फिदा जो हैं इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने वाले हैं, एंड ही इज़ आल्सो वर्किंग एज अ लाइजन बिटवीन अस and the panels in Pakistan. My current role is to convene meetings for this board, and we rotate our convenership among ourselves. Faisal Saab, Tariq Saab, Saida have played a convenership role in the past. So, couple of announcements. February 10 meeting, which was next week, has been rescheduled to February 24th, where all 4 presidents will come and face questions at the same time. So we will have a different set of questions for them. This rescheduling happened because of general elections in Pakistan and the possibility of interruption in social media. We try to keep panel discussions similar to each other to avoid biased feelings. However, just repeating exact same questions to everybody is also not very interesting. So we kept the theme same. Phrasing out questions would be slightly different, but we will stick to our fundamental few areas to explore, which we have explored 3 panels before, and we will be exploring Founders Panel today on the same areas. Obviously, every panel, every group has uniqueness, so there will be some uniqueness to the questions as well. So a few things on logistics. This is a dual language forum. One can use Urdu or English. This was a question raised earlier. This is the last session of the 4. Next session is on February 24th. I'm mentioning this again and again for the benefit of the people who are here, so that they can put the February 24th time and the day also on their calendars. So all participants stay muted except the people who are supposed to speak, and there will be no live questions. Questions we will receive in the chat box, or we have received the questions in advance. So we have a set of questions which we have been pursuing all these panels.
The session will be 60 to 90 minutes, and our experience tells us that this will be 90-minute session, and we will try our best to keep the session within 90 minutes. This is a weekend here and in Pakistan, so people have their engagements and other activities. So we don't want to extend the session beyond 90 minutes. However, this is also a soft deadline. So there will be two part of this session. First part, panel will use some time to describe their manifesto. So I will suggest here, so we notice that there are two panels. One of them is yours who has this whole list of achievements. The question is, there was no official alumni before. So this achievement, whatever you has been doing in whatever capacity, so that's fine. However, we are interested and our members are interested to find out or to learn what are you going to do if you win the election in future. So I will suggest to focus on your plan, what do you intend to do, and how you intend to serve the alumni base as well as the alma mater. We are a non-partisan group, and we try to keep stay non-partisan. Obviously, everybody has their affiliations, but then we don't bring them on the table. If you feel any time during or after that we exhibit a partisan behavior, then we would like to know, and we will try to remedy that as quickly as soon as possible. We have a YouTube channel. The address is here, and the recording will be posted on this YouTube channel, and we'll share one or two times the link and the recording with through WhatsApp groups. But then permanently, these recordings are archived at this channel, and this link will also be shared. The previous 3 panel discussions are already there, and at the end, we also like to hear feedback and how your experience has been with us. We will love to hear that. With this, I will come to a last page of my presentation here. Before I got into this and hand over the podium to the panel, I would say this has been a fantastic experience for us, and I hope this is the same for the panels as well. We learned a lot, and we have to do some work, but then our members have been participating in helping back-end work. It was fun. It was interesting. I think it was useful as well. So I took main points and try to summarize your 27 points of manifesto into these 5-6 points for our members, so that they can read. If they see the slide, they can read it, and they can say what you're saying. So with this, I will hand over the podium to the panel, which will follow your presentation. And my suggestion is, do not take more time. So leave time for questions and answers, and that's where the audience will be engaged. With this, Founders Panel, this is yours. Thank you very much, and Assalamu alaikum. Am I audible? Just to confirm. जी बिल्कुल आप शुरू कीजिए. Assalamu alaikum, and thank you very much for inviting the founders group to this town hall meeting. I think this is a wonderful effort by the Quaid-i-Azam University North America for bringing the different panels together and let them share their manifesto, their desires, and their plans. Today over here, some of the panel members are present in this room. First of all, my name is Dr. Abdul Basit. I did my MBA in the 1978-80 session and scored the top position in the entire faculty of social sciences. I'll cut my own personal introduction very short. Presently, I'm working as Chancellor of Preston University. Also with me over here are, Hussain Ali Kalwar Saab. He is a graduate of the Department of History, 1998. Then we have Murtaza Noor Saab, the Secretary. He is the graduate of the History Department again, 1999. 98, 99. We have Vijat Latif Saab. He did his MPA in the 1997 session.
And we have over here Irfan Saab, Irfan Malik Saab on the panel. I'll take a few minutes just to set the tone for the whole thing. My very important point over here is that even though some people think that there was no existence of any alumni association, for the record, I would like to correct that there has been an alumni association very much active and very much contributing to the Quaid-i-Azam University community since the year 2000. The status of this alumni association is that it was approved by the syndicate of the Quaid-i-Azam University, and it has a legal standing as such. We had an MOU also signed with the administration of the Quaid-i-Azam University, which provides recognition of the alumni association. Nevertheless, since the university administration has announced the election, so now we are into the election process, and we are going to go forward. I think it is very important to keep in mind that our future plans and our manifesto is based on our success of the last 24 years of what we have done for our alma mater, Quaid-i-Azam University. I think I will not delve into the achievements so much, but I think a number of things have been done in different areas. And as the questions come up, we'll refer to those items. I'll take this opportunity now very briefly to touch upon our 6 main points of the manifesto. First of all, our target is that in this year 2024, we will arrange at least 200 scholarships for deserving students which will be admitted in the fall semester 2024. This is the minimum number. The actual number of scholarships may go beyond 200. And this is based on our past experience that we have been able to achieve the scholarship donations from our Canadian friends. I will diverge a little bit over here regarding the scholarships, and I want to highlight a very, very important point. Several years ago, when we started collecting funds and arranging these scholarships, we made a policy decision that this entire process will be 100% transparent. The linchpin of this whole process was that we decided that the scholarship account will be operated by the university by its own officials. So over the last many years that we have provided scholarships, all the money from our Qadian friends and friends of Qadians has gone into that university account operated by the university. The Alumni Association has not touched any money, not received any money, not disbursed any money. And all that record is very crystal clear. Anybody can go to the university and check that account. Our intention is that after winning this election, inshallah, we will keep it 100% transparent as it is. The scholarship account will continue to be operated by the university, and we intend to put up a live, actions and activities on the website of Alumni Association after the winning of the election, so that any member anywhere in the world can see for themselves how things are moving in terms of finances as well as in terms of activities. Back onto the manifesto item. The other part of this first point is that we need to create an endowment fund. As most of you know, that non-profits operate mainly by generating their operating income from endowment funds. So I think it is very, very important that we create a sizable endowment fund for the Alumni Association. And our target is to set up an endowment fund of rupees 500 million. This is a big amount, but I think the discussions we have had with many Qaidians at very well-placed positions, both within Pakistan and abroad, we will be able to generate enough corporate donations, and we'll be able to find enough philanthropists to provide that amount of money. So with this initial setup of 500 million, we'll be able to generate some income which will go into scholarships and which will go into other activities. A second point of our manifesto is to help the university in terms of its infrastructure and other facilities. One of this is the solar power project for the university. I will not go into details, but many of the departments need lab equipment and upgrading and so on. We'll provide that. Another very, very important point is that we need to involve the students, the current students, into healthy activities. So one of our objectives is to provide support services for the student clubs and student societies, as well as help them in their careers. There is already a career counseling center operating in the university. Our manifesto point is to strengthen that further to cover 3 aspects. Number one is the career counseling itself.
advising the students or those who have just graduated, helping them out with the internships and job placements. Second point is to provide them academic advising and counseling. And the third point is to provide them personal counseling. Many of our Qaidian friends who have graduated from psychology department, they have committed their time and resources to be able to support and run that counseling center. Also, we think one of the major functions of the Quaid-i-Azam University Alumni Association is to provide a platform for all the Qaidians to connect with each other and be able to be part of this broad network of all the Qaidians, whether in Pakistan or abroad. And this connection, I think we would further strengthen the many chapters we have established in different provinces of Pakistan and abroad as well. It is very, very happy to note that the North American chapter is already very much operational, very well organized, and would like to link up the ties with the Alumni Association and make North American chapter more vibrant and more integrative with the Alumni Association itself. यहाँ पर मैं कुछ चीजें जो मैनिफेस्टो से रिलेटेड है उनका और भी जिक्र करना चाहूँगा. One of the important aspects is that as a part of this networking, we need to bring back the alumni and connect them to the Quaid-i-Azam University. In the past, we have done this by arranging annual alumni dinners or arranging cultural festivals. So our intention is to do this in the coming years as well. Inshallah, when the panel wins, we'll arrange a big alumni dinner towards the later part of this year at Quaid-i-Azam University campus, and also perhaps such occasions at the headquarters of various chapters and within Pakistan and abroad. Also, we intend to bring in job fairs to the university in which the Qaidians can provide an input. One of the very important goals or manifesto items is to help the university in strengthening and further enhancing its quality and in bringing the university in touch with the outside world, particularly the industrial sector, services sector, and the financial sector. I think the Qaidians who are very well placed both in Pakistan and abroad, they can utilize their resources and provide something back to the alma mater in terms of various inputs, which could be working as a guest speaker or organizing other resources from outside to help the students and the faculty to bring the university in touch with the industry and services sector so that there can be a greater collaboration for research and development. Also, Qaidians can play and Alumni Association play a very important role in providing opportunities for the Quaid-i-Azam University researchers to find applications in the industry and help the economy and the society. So this is a very, very broad version of description of the manifesto. I haven't gone into all the details. I'll leave the details later on. Before I close this initial intro, I would like to say a few words about what the Alumni Association is supposed to do and what not to do. The Alumni Association primarily is a platform for bringing all the Quaid-i-Azam University graduates together so that they are able to link with each other and also be able to pay back to their alma mater and to help and facilitate the university. What Alumni Association is not supposed to do is to operate the university. Running the university is the job of the university administration. But the Quaid-i-Azam University Alumni Association can play a very critical role in facilitating and helping and supporting the Quaid-i-Azam University administration in the running of the university. Very clearly, I want to reiterate that Alumni Association will not operate the university, will not interfere in the operations of the university, but will definitely be in a position to advise and facilitate the administration to make it easier to handle the challenges and the problems of the university. So I think this has to be very, very clearly understood. What is the scope and the extent of the role of Alumni Association? The entire manifesto of any panel must be read in the background of this framework, in the background of this structure. तो मैंने ये ब्रीफली सारा डिस्क्राइब कर दिया. आई थिंक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं चाहूंगा कि दो तीन सेंटेंस जो हमारे पैनल के 3-4 लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी अपनी तरफ से कहना चाहेंगे. तो पहले मैं हुसैन अली कलवर साहब को दावत देता हूँ कि जनाब आप कुछ Sir, thank you very much, Dr. Pak sir. Thank you QAU Alumni North America हमें इनवाइट करने के लिए और हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए. और
पूरा आपका जो लास्ट 3 सेशन हुए हैं और आज 4th सेशन है, आपका जो इसमें ओवरऑल रोल रहा है हम अप्रिशिएट करते हैं। और यही एक कनेक्टिविटी है जो एलुमनाई, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मुख्तलिफ चैप्टर्स को मेन एलुमनाई से कनेक्ट करना, वो हमारे एक ऑब्जेक्टिव में शामिल है। हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह के सेशन फ्यूचर में भी जारी रहें बियॉन्ड इलेक्शंस, और इसी को हम कंटिन्यू करें। हमारा जो इस वक्त का अभी तक का जो इनपुट है डिफरेंट लोगों से हमारी इंटरेक्शन रही है, उसमें सब ने एक मैसेज जरूर दिया है एज गाइडियन के व्हाटसोएवर इलेक्शंस आज होते हैं और इलेक्शन के बाद क्या सीन होता है, तो एज अ ग्रुप जो हमारा फाउंडर्स ग्रुप है, उसकी कमिटमेंट ये है कि इलेक्शन जीतना हारना एक अलग चीज है, लेकिन जो सर्विसेज हमने पास में की हैं वो बल्कि उनमें एडिशन करके हम सर्विसेज अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है एज अ ग्रुप। तो इस और दूसरी कमिटमेंट हमारी यही है कि कोई भी आता है लेकिन everyone will work as a guardian to pay back to the university. So thank you very much everybody. I will ask Mr. Noor Saab to add something. Thank you very much. First of all, we are grateful to the host for arranging this very informative session for the whole guardians. जहाँ तक फाउंडर्स ग्रुप का, जैसे कि बासा साहब ने भी बताया, और उसमें 2 चीजें हम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इनिशिएटिव्स जो हम फ्यूचर में प्लान करने जा रहे हैं, और उसके लिए ऑलरेडी हमने काफी हमारा होमवर्क भी कंप्लीट हो गया है। एक तो ये है कि जो हमारे कॉलेज में जो अलुमनाई आते हैं उनके पास वहाँ पे एक रेजिडेंशियल के लिए या एक ऑन कैंपस उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, दे कांट स्टे देयर। ऑलरेडी हमने 4 जो रूम्स का एक वहाँ पे गेस्ट हाउस था उसको रेनोवेट करवाया, उसमें ऑलरेडी अलुमनाई के लिए हमने प्रोविजंस रखवाई है कि अलुमनाई कैन स्टे देयर। लेकिन इंशाल्लाह हम एक गाइडियन जो क्लब है वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश, अगर हमारे पास ये फैसिलिटी आती है जिसमें एक गेस्ट हाउस के अलावा वहाँ पे प्ले एरिया जो होगा बच्चों के लिए होगा, जो गाइडेंस के किड्स वगैरह आते हैं, वो इस्लामाबाद क्लब की तरह हम उसको थोड़ा सा मॉडलाइज करना चाह रहे हैं, और उसमें हमें काफी होमवर्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा, हम एक गाइडियन फॉर विलेज कार्ड जो है वो एक हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये होगा कि गाइडेंस को मुख्तलिफ जो मेडिकल, एजुकेशनल और लैब्स और दूसरी जो आउटलेट्स होंगे उसके ऊपर प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगी। और ये जो इसमें एक और भी कनेक्टिविटी का भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कि वो जो गाइडेंस जिनके पूरे पाकिस्तान में आउटलेट्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, तो उनको भी आप उसमें शामिल कर रहे हो। वी विल बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ दोज आउटलेट्स विद द गाइडेंस के, ये आप अगर हैदराबाद में जा रहे हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम हैदराबाद में जा रहे हैं तो ये गाइडेंस की वहाँ पे आउटलेट्स हैं, तो लिस्ट हम उनके साथ शेयर कर रहे होंगे, तो ये कनेक्टिविटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और दूसरा एक वेलफेयर का एस्पेक्ट है कि हमारे मेडिकल टेस्ट यहाँ पे बड़े महंगे होते हैं, हमारा मेडिकल यहाँ पे बड़ा यहाँ पे कॉस्टली है, एजुकेशन कॉस्टली है, तो उसके अंदर हम ये पूरी की पूरी हमारी जो गाइडेंस की कम्युनिटी है उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी गुजरात नदीफ साहब और कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। Assalamu alaikum. Contesting election against the position of joint secretary. I've done my MBA back in 97-98, and I've been working as a pro-rector admin of finance department International University Islamabad. Thank you very much. आप लोग नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो डॉक्टर बासित साहब ने, हुसैन कलवर साहब ने, मुर्तजा नूर साहब ने अलुमनाई एसोसिएशन के हवाले से बताया। लास्ट 24-25 इयर्स की जो एक लॉन्ग एसोसिएशन है आफ्टर आवर ग्रेजुएशन, इस अलुमनाई एसोसिएशन के साथ वी हैव डिलीवर्ड ट्रेमेंडस जो अचीवमेंट्स हैं हमारी इस अलुमनाई की, जो कंट्रीब्यूशंस हैं कायद यूनिवर्सिटी के लिए, वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इतना ब्रीफ मैनिफेस्टो, इतनी डिटेल डिस्कशन जो डॉक्टर बासित साहब ने कही, मैं सिर्फ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जो प्लान है फाउंडर्स ग्रुप का वो बड़ा क्लियर हेडेड है, और जो हम लोग इंशाल्लाह ताला डिलीवर करने जा रहे हैं, जो हमारे एक्शंस ऑलरेडी पहले टेकन है, विल सी इंशाल्लाह ताला हम कितना बेहतर पहले से परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू। So this is the introduction part from our side, and we go back to the moderators now for the questions.
and answer session. बहुत शुक्रिया फाउंडर्स ग्रुप। सबसे पहले मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा हमारे फेलो कैंडिडेट्स को जिन्होंने हमें ये सवाल भेजे। उसमें गुल अख्ताम, मोहम्मद मोहसिन कियानी, तारिक शाह, मोहम्मद अहमद, खालिद महमूद, अंसर सईद, इजलाल हुसैन, अरशद भट्टी, अहमद, इजाज लोधी, फरेब हैदर, अली कमाल, बशीर अहमद, रियाज अहमद, महमूद, जाहिद अजीम, गुलाम हुसैन, रिजवान लोधी, बशीर बेग, आजाद लगारी, इमरान खान, शाहिद मिनहास, रियाज अहमद चीमा, जाहिद अजीम, कासिम खान, हमूदुर रहमान और मैडम खदीजा। इसके अलावा 3 लोगों ने हमें एनोनिमसली सवालात भेजे। एक ने लॉगिन किया एनोनिमस के नाम से, एक शाओमी और एक टी। तो इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने दोस्त फिदा को दरख्वास्त करूंगा कि वो पहला सवाल शुरू करें। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। आप सब लोग आए, हमारे साथ तावन किया और इस सारी चीज़ को सक्सेसफुल किया। मसलन कि इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ अस इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे साथ साथ, और आप अपने पॉइंट्स को जिस तरह से पिवट करना चाहें अपने मैनिफेस्टो को करते रहिएगा। जो सिंपल फर्स्ट पहला सिंपल क्वेश्चन तो या डिस्कशन का हम शुरू करें कि ओके, मसलन कि व्हाई यू आर इन्वॉल्व, मसलन कि आपके जो आप इसमें जीत के क्या करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, आप क्या जो है ना आपका विजन क्या है कि आप यूनिवर्सिटी को किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए आप अपने आप को किस रोल में, मसलन कि किस तरह से आप उसे ओवरऑल देखना चाहते हैं, आप इसमें प्रोसेस में क्यों हैं, कहना ये चलो जिस तरह से भी आप क्वेश्चन को डालो। जी थैंक यू वेरी मच, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। बात यह है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है वो इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि व्हाई वी आर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फील ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड, कि हमने कायद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। कायद यूनिवर्सिटी ने हमें एक बड़ा एसेट दिया डिग्री की फॉर्म में, एजुकेशन की फॉर्म में। उसको यूज करके हम लाइफ में आगे बढ़े हैं, हमने अपनी अचीवमेंट्स की हैं। तो अब एक मौका है कि हम कुछ यूनिवर्सिटी के लिए वापस जाके यूनिवर्सिटी को दें। तो आपके सवाल से डायरेक्टली जो 2 चीजें निकलती हैं वो ये है कि नेचुरली हम जो करंट स्टूडेंट बॉडी है और जो फ्यूचर में स्टूडेंट आएंगे उनको हम हेल्प करना चाहेंगे, फैसिलिटेट करना चाहेंगे। जैसे मैंने मैनिफेस्टो में जिक्र किया कि उनके लिए करियर काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग, उनकी पर्सनल काउंसलिंग, ये उनके लिए सपोर्ट है। यूनिवर्सिटी के जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप फंडिंग अनफ नहीं है, उसको प्रोवाइड करना, और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं हम फील करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये यूनिवर्सिटी के लिए करना है। तो ये जो एक जज्बा है, ये जो एक स्पिरिट है, इसके साथ हम आए। इसके पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें बार बार ये कहना पड़ता है, हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने माइंड से ये ना बुलाएं कि हम कोई नए एक्सपेरिमेंट के लिए ग्राउंड में नहीं उतरे। हम पिछले 24 साल से ये काम कर रहे हैं और हमें दिल में बहुत इत्मीनान है कि हमने अपनी हद तक जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे यूनिवर्सिटी के लिए किया। और हमारा प्लान ये है कि हम ये कंट्रीब्यूशन न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि इसमें इजाफा करेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जो थोड़ा सा सैम कलवर साहब ने भी इसको टच किया था, कि वंस द इलेक्शन इज ओवर, कोई भी पैनल जीत जाए, हमारा व्यू ये है कि हम सब कायदीन हैं, हम सब मिल के यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करेंगे। इंशाल्लाह अगर हमारा पैनल जीतता है तो हम बाकी पैनल के लोगों को बुलाएंगे कि आए हमारे साथ बैठे, वो अपनी एडवाइस दें, अपना मशवरा दें, उनके पास भी जो एक्टिविटी या प्लान है हम उनको भी साथ शामिल करके आगे चलें। तो ये हमारा व्यू है इसके लिए, और इस जज्बे के साथ हम ये करने के लिए आए। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। तो आप हमें एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल बताइए, और उसका एक्सप्लिसिट इम्पैक्ट क्या होगा इल्यूमिनाई जो पाकिस्तान के अंदर है और जो ओवरसीज हैं उनके लिए। जी पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक नहीं है बल्कि सेवरल शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और सेवरल जी लॉन्ग। आप एक बता दीजिए। क्योंकि एक का जिक्र है तो एक मैं प्रोवाइड करता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल जो है फॉर द यूनिवर्सिटी वो हमारा स्कॉलरशिप्स है। कुछ हम स्कॉलरशिप्स इमीडिएटली हम प्रोवाइड करेंगे इसी साल में 200 स्कॉलरशिप। उसका इमीडिएट बेनिफिट जो है
उन स्टूडेंट्स को होगा जो करंटली एडमिट होंगे और इवेंचुअली वो भी अलुमनाई बनने वाले हैं। दूसरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि हम जितने चैप्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं पाकिस्तान में या बाहर के हैं उन सबको इंटीग्रेट करेंगे, will bring them closer to each other so that the alumni and the Qaidians are better connected to each other for better support for each other. ये हमारा एक इमीडिएट गोल है। अब आप लॉन्ग टर्म में बात करें तो भी सेवरल गोल्स हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन बताया मैं एक का जिक्र करूंगा। और मैंने फर्स्ट मैंने बताया कि जैसे हम ₹500 मिलियन का एक एंडोमेंट फंड जनरेट करने जा रहे हैं, दिस इज आवर लॉन्ग टर्म गोल। और इन द लॉन्ग रन दिस एंडोमेंट फंड विल बिल्ड अप और उसका बेनिफिट ये होगा कि यूनिवर्सिटी को भी बेनिफिट जाएगा and this will be a platform for the Qaidians to come together and join their hands to pay back to the alumni. Thank you. जी, थैंक यू वेरी मच बस साहब। जैसे उसी क्वेश्चन को आगे लेके चलूं तो आप के पैनल के या आपका जो व्यू है इस बारे में कि आप कैसे सोचते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कायदियंस हैं वो आपको इस मामले में यूनिवर्सिटी में या आपके उस पैनल की वो सर्विस में किस हद तक आप उन्हें अपने उसमें शामिल करेंगे और किस तरह से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं? आपके दिमाग में क्या है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी आपके लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी का मतलब सारे पाकिस्तानी कायदीन की बात कर रहा हूँ, वो आपको कैसे, आप उन्हें कैसे अपने इस सारे माहौल में जो है ना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। और जब हम ओवरसीज कायदीन की बात करते हैं तो नेचुरली एक तो आपका नॉर्थ अमेरिका चैप्टर है, बट देन देयर आर कायदीन्स इन द गल्फ रीजन, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बहुत सारे लोगों से हम इन टच भी हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि ओवरसीज कायदीन्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे और अपनी जो ट्रांसपेरेंट वर्किंग से एक कॉन्फिडेंस और एक ट्रस्ट पैदा करेंगे so that we can work together as a single body for giving back to our alumni. तो हमारे माइंड में व्यू ये है कि जो हमारे ओवरसीज गाइडेंस हैं वो जहाँ जहाँ पोजीशन पे बैठे हैं वो मल्टीपल डायमेंशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैरियर काउंसलिंग में वो दे कैन बी गेस्ट स्पीकर्स, दे कैन बी ऑनलाइन एंड एडवाइज देम एंड गाइड देम। जो नए लोग हमारे प्लेसमेंट्स में हैं, जॉब सीकिंग में हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अक्रॉस द रीजन भी हो सकता है कि यूरोप के लोग नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के लोग आई मीन कायदेंस यूरोप में या गल्फ में एक दूसरे को सपोर्ट करें और हेल्प करें। सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम समझते हैं कि जो हमारे ख्याल में हमने कायदेंस में यूनिवर्सिटी को और इंडस्ट्री को लिंक करना है, इसमें ओवरसीज कायदेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, पर्टिकुलरली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, टू सम एक्सटेंट इन गल्फ बिग कॉर्पोरेशंस आर प्रेजेंट। और उन कॉर्पोरेट सेक्टर को हमने यूनिवर्सिटी का टाई अप करना है टू प्रोवाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज and also to link the research output of the university for applications in the industry, in the financial sector, in the services sector. तो I think ये ऐसा रोल है जिसमें हमारे ओवरसीज कायदे बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं और हमारा व्यू ये है कि हम उनको ऑन बोर्ड लेके आएंगे। मैं यहाँ पे भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी ने अभी पैनल बनाया है वो 20 पैनल है, डिफरेंट पोजीशन आपने देखी होंगी। हमारा जो इलेक्शन जीतने के बाद एक एजेंडा आइटम ये भी है कि विल सिट डाउन विद द यूनिवर्सिटी एंड मेक एन अमेंडमेंट। और हमारा ख्याल है कि 2 सीट्स जो हैं वो ओवरसीज कायदीन के लिए भी पैनल में होनी चाहिए, जहां फ्रॉम अ डिस्टेंस दे कैन बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट एंड दे कैन प्रोवाइड देयर इनपुट्स। तो आई थिंक इन अ शॉर्ट वर्जन दिस इज हाउ वी व्यू इट। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात टच की कि एलुमनाई एसोसिएशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या एक्टिविटीज वो कर सकती है। तो इन सब की एक्टिविटीज के लिए आपके जहन में क्या बेंचमार्क मेथोडोलॉजी है ताकि इन सारी एक्टिविटीज की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती रहे? आवाज कट रही है लास्ट पार्ट आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि एलुमनाई एसोसिएशन जो है वो क्या एक्टिविटीज कर सकती है और क्या करती रहेगी। तो उस हवाले से आपके जहन में क्या बेंचमार्क और एवेल्युएशन मेथोडोलॉजी है कि सारी ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को किस तरह रिपोर्ट किया जाएगा? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे साथी भी जवाब देना चाहेंगे लेकिन मैं जरा पहले इसमें क्लियरिफाई कर दूं। बेंचमार्क बेसिकली हमारा ये कि जो हमारी अब तक परफॉर्मेंस है हमारे लिए वो बेंचमार्क है, उसको हमने कंपेयर करके आगे ले जाना है।
जो रिपोर्टिंग का ताल्लुक है, देखिए इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा है एक्टिविटी रिलेटेड रिपोर्टिंग। हमारा व्यू ये है कि हम कोई एनुअल रिपोर्ट साल के एंड में लोगों को नहीं देंगे कि फिर वो टाइम में वापस जाएंगे और देखें क्या हो। हमारा व्यू ये है कि इमीडिएटली आफ्टर दी विनिंग ऑफ इलेक्शंस हम एक एक्टिव वेबसाइट अलुमनाई एसोसिएशन की बनाएंगे, जिसके ऊपर ऑनगोइंग हमारे रिजल्ट्स पोस्ट होंगे, हमारी आने वाली एक्टिविटीज के प्लान भी वहां पे होंगे, हमारे जो भी जिस किस्म की कोई भी एक्टिविटी उसका प्लान उसका प्रोग्राम वहां पे होगा, एंड एज द टाइम पासेस एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड उनकी एक्चुअल रिपोर्टिंग वेबसाइट के ऊपर लाइव मौजूद होगी ऑन टाइम। इसी तरह एक सेक्शन वेबसाइट के ऊपर फाइनेंशियल का होगा, एंड आई थिंक वी विल इन्वॉल्व a firm of the chartered accountants to vet those on an annual basis। लेकिन जो हमारी वीकली और मंथली रिपोर्टिंग है वो हम वेबसाइट पे डालेंगे so everybody can see for themselves। इस पे इससे रिलेटेड एक और पॉइंट प्रॉब्ली आपकी तरफ से क्वेश्चन आएगा, मैं पहले उसका एक आंसर देना चाहता हूँ यहाँ पर। हमने पिछले 23-24 इयर्स में एक गाइडिंग प्रिंसिपल अपने लिए रखा है कि जो कुछ भी हम यहाँ पे करेंगे इट शुड बी 100% ट्रांसपेरेंट। और इसकी पर्टिकुलरली जो फंडिंग वाली सिचुएशन है उसमें हमने ये किया था, वी नेवर रिसीव्ड एनी फंड्स either directly from the public nor did we raise any funds in any event। ना हमने मेंबरशिप फी रखी तो हमने फंड्स रिसीव नहीं किए। फ्यूचर में भी हमारा इरादा यह है कि हम फंड्स खुद नहीं रिसीव करेंगे, स्कॉलरशिप या किसी और शक्ल में जो फंडिंग आएगी वो डायरेक्टली हम जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाए। सिर्फ ये होगा कि जो गवर्नमेंट फंड है उसकी इनकम को जब जनरेट होगी तो वो अकाउंट हम लाइव वेबसाइट पर डालेंगे so everybody can see where is the government money, how much income came from it, where was it applied, और इसको ओपन रखेंगे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू। किसी और ने भी पूछना था, आपने जिक्र किया, शायद कोई और बोलेगा, शायद नहीं। मैं चाह रहा अच्छा था ठीक है, इन्वॉल्व ठीक है, हूं, ठीक है, लेकिन वो ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि आई थॉट आई विल जंप इनटू इट। that's fine, that's totally fine, everybody will get a everybody will get opportunity। रिस्पॉन्ड करती है जी, थैंक यू। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ही आगे थोड़ा सा चलाते हुए, क्योंकि मसलन कि आपका पैनल जो है, आपका फाउंडर पैनल जो है, किसी न किसी तरह से यूनिवर्सिटी का ना उसका हिस्सा रहा है, या आपके ग्रुप मेंबर जो हैं वो उसका हिस्सा रहे हैं। मसलन कि जो अलमनाई मैटर्स हैं जो आप करते रहे हैं, या जिस तरह से किसी न किसी तरह से आप करते रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया आपने, या उसका काम है, जैसे आपने अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र किया, ठीक है, और उसमें वो सारी चीजें। अब इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने थोड़ा सा टच भी किया है। एक तो ये है कि आप इन्हें कर लीजिएगा कि आपको ऑफिशियल यूनिवर्सिटी या किसी गवर्नमेंट से किसी किस्म की फंडिंग हुई है, एक क्वेश्चन, या उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड है, किसी तरह से भी आपको कोई भी हेल्प मिली है, और आप कायदीन्स के साथ, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी बात पे आते हैं कि जी आपका वो जो अचीवमेंट के साथ, मसलन कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, अगर आपको शेयर लोगों के साथ, अपने कायदीन के साथ करना हो तो आप कर सकेंगे, जो पिछली रिपोर्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। तो इसके दो तीन आंसर हैं। नंबर वन आंसर इज कि हमें अलुमनाई एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी से या किसी और सोर्स से, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, किसी किस्म की कोई फंडिंग वसूल नहीं की, जीरो फंडिंग। जो हमने फंड्स कायदे फ्रेंड से जनरेट किए, उसका तरीका ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इस साल हमें पता चला कि 50 या 60 या 100 लोग हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, जिनके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, तो हम उसकी स्कॉलरशिप कैसे जनरेट करते थे? कॉल आवर कायदे फ्रेंड्स। उनको बताते थे कि यार ये 50 बच्चे हैं जिनके लिए फीस के पैसे नहीं है, तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं? और जो लोग कहते थे हम हेल्प कर सकते हैं, हम उनको बताते थे ये यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप अकाउंट है, ये पैसे आप वहां प्रोवाइड करें। तो ऑल दैट मनी हैज गॉन इनटू द यूनिवर्सिटी अकाउंट एंड दैट इज अवेलेबल। कोई भी चेक करना चाहे तो दैट रिकॉर्ड इज देयर। इसके अलावा हमने जो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत से काम और भी किए हैं, जैसे हमने जो म्यूजिकल सोसाइटी है उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। कोविड के दिनों में यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चली गई थी, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम देने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी, तो सडनली इट वाज एन इमरजेंसी। हमने बहुत से कायदीन फ्रेंड से बात की, उन लोगों ने इंटरनेट डिवाइसेस प्रोवाइड की, जो राउटर्स वगैरह सारा कुछ। लेकिन वो हमने पैसे इकट्ठे नहीं किए, हमने कायदीन से कहा आप जो हेल्प कर सकते हैं, गेट योर ओन इक्विपमेंट एंड प्रोवाइड इट टू द यूनिवर्सिटी, और वो हमने वहां पे लगाया।
इसी तरह जो हॉस्टल्स हैं उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यू था कि वाटर वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, बच्चे बीमार हो रहे थे, लड़के के हॉस्टल में भी लड़कों के हॉस्टल में भी। तो हमने 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वहां पे लगाए। उसके लिए भी हमने किसी किस्म का फंड या रुपी अमाउंट किसी से जनरेट नहीं किया। हमने कहा अच्छा, कि जो हेल्प कर सकते हैं वो डायरेक्टली इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। तो चलो उसका ठीक रिकॉर्ड है, भी मौजूद है। तो आपको मैं समराइज करके 2 आंसर दे रहा हूँ। नंबर 1 आंसर है ठीक है, कि ये अलुमनाई ने किसी किस्म का फंड यूनिवर्सिटी से या किसी और सोर्स से रिसीव नहीं किया। सेकेंडली, जितनी एक्टिविटीज की उन सब का रिकॉर्ड अवेलेबल है, कोई भी देखना चाहे तो हम सारा रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। जी। तो एक कमेंट करता हूँ, उसका फैसल पूछेंगे आपसे कि जो जिस लोगों ने, हमारे कायदीन ने, जिन्होंने आपके बस इनके हेल्प की है इस प्रोसेस में, वो फाइनेंशियल हेल्प किया है, जज यूनिवर्सिटी को किया है, तो उनका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होगा अगर लोग देखना चाहें कि जी लोगों ने पैसे, इसलिए नहीं कि हम शो ऑफ करना चाहते हैं, इस वजह से कि अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट पर्पज से उन लोगों की इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके पास कि उसने क्या किया है और कैसे कैसे हुआ है, राइट? जी बिल्कुल, वो सारा अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जितनी फंडिंग है ये यूनिवर्सिटी के अकाउंट में गई है और उस अकाउंट में स्टेटमेंट में मौजूद है कि किसने कितना फंड प्रोवाइड किए और फिर उस फंड्स को किस किस स्कॉलरशिप में इन्वेस्ट किया गया, किस किस स्टूडेंट को वो अकाउंट फॉर की। सो दैट थैंक यू रिकॉर्ड। वेरी मच, थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। कादियान यूनिवर्सिटी वाज इनिशियली सेट अप एज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी। नहीं है माइक। जी, कादियान यूनिवर्सिटी वाज इनिशियली सेट अप एज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी, लेकिन अब जो है स्टैंडर्ड काफी नीचे चला गया है। इस पैनल की क्या स्ट्रैटेजी होगी कि रिसर्च प्रोफाइल को डेवलप करके इसको एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के एट पार लाया जा सके? जी डेफिनेटली, आपने ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया है। देखिए, कायदे यूनिवर्सिटी लाइक ऑल अदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उसका गोल यही है कि वो अपनी क्वालिटी को एनहेंस करे, अपनी रिसर्च प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करे। ओरिजिनली द यूनिवर्सिटी वाज सेट अप एज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी ओनली, बट सिंस 2010 the undergraduate schools भी वहाँ ऑपरेट हो रहे हैं and the bulk of our students are now in the undergraduate. So I think this is nothing negative. As you have seen in North America also, many universities have a strong undergraduate base on which then the faculty builds up their research at the graduate level. Basically, I think यूनिवर्सिटी को हम एडवाइस कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यूनिवर्सिटी के कोई एक पर्टिकुलर एक्स लेवल से वाई लेवल के ऊपर लेके जाना, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का काम है। इसमें फैकल्टी भी इन्वॉल्व है, इसमें रिसर्च स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, हायर एजुकेशन कमीशन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्वॉल्व है। उसमें एक रोल हमारा एज ए स्टेक होल्डर एलुमनाई का भी है। तो जो हमारा रोल है वो हम प्ले करेंगे। विल ट्राई टू ब्रिंग इन द बेस्ट माइंड्स टू द यूनिवर्सिटी। अगर उनको परमानेंट नहीं आना चाहता फैकल्टी, तो आजकल तो ऐसा दौर है कि लोग बैठे बैठे भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो वी कैन अरेंज सच अरेंजमेंट्स or we can arrange such projects where the Kaizen University alumni, particularly those who are in universities abroad, they can provide some inputs or at least give some guidance and advice so that the university raises up in terms of its contribution. Let me also point it out over here कि ठीक है, standards down हुए हैं, overall पाकिस्तान में standard down हुए हैं। Kaizen University is not the only one, लेकिन एक अच्छा factor भी है। Still Kaizen University is number 1 in ranking in Pakistan. दूसरी बात यह है कि जो टॉप 300 यूनिवर्सिटीज है दुनिया की, उसके अंदर हमारी साइटेशंस आती हैं। दी रिसर्च प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड, बट देन उससे इंपॉर्टेंट है कि उस रिसर्च पेपर्स को लोगों ने यूटिलाइज कितना किया, व्हिच इज मेजर्ड बाय द साइटेशंस। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारा अच्छा खासा नंबर है साइटेशंस का, और वर्ल्ड वाइड हम फर्स्ट 300 यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं इन टर्म्स ऑफ साइटेशंस। तो ऐसा भी हमें नहीं लेना चाहिए कि कादिर यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ही नीचे स्टैंडर्ड चला गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि कादिर यूनिवर्सिटी इज ए गुड यूनिवर्सिटी, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, लेकिन डेफिनेटली जो अल्टीमेट गोल है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वी वांट टू टेक इट टू द स्टार्स सो एज टू पुट द विश। तो इंशाल्लाह हम एज ए कायदियन यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेंगे, हमारी जो फैकल्टीज हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे ताकि इसका स्टैंडर्ड फर्दर इंक्रीज। ये थैंक यू वेरी मच। नहीं, हम तो बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो यूनिवर्सिटी ऊपर है, जो थोड़ी सी नीचे, हम उसे भी चाहते हैं कि ना नीचे जाए, और मकसद सिर्फ ये है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कॉमन गोल है अच्छा, हमारा, आपका कॉमन गोल है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल कॉमन गोल है, जैसे मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया था, हमारा गोल कॉमन है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे
what will be the role of your panel to develop linkage with the industry for job placement in Pakistan and abroad? कि जो लोग फॉर एग्जांपल अभी ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, बस कि एलुमनाई बन चुके हैं, ये प्रोसेस में आ रहे हैं, जैसे कहा पहले बात हुई को-ऑप पोजीशन पैदा करने के लिए, या फिर उनके लिए इंडस्ट्री को मसलन के सॉफ्ट करने के लिए, ताकि इंडस्ट्री में वो आके एकदम से अपनी जो है ना फ्यूचर उस चीज को कर सकें। लिंकेज यूनिवर्सिटी और रियल मार्केट के साथ लिंकेज बिल्ड करने के लिए आप पैनल में आपकी क्या सोच है इस पॉइंट में? हमारे इसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, और इसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली ये है कि जो हमारा डायस्पोरा है कादिर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स का, दे हैव स्प्रेड फार एंड वाइड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड। और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लें, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का नाम लें, हमारे कायदे वहाँ बैठे। तो पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वी हैव हेल्प द फ्रेश ग्रेजुएट्स कमिंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, उनकी जॉब प्लेसमेंट में, उनकी करियर डेवलपमेंट में, करियर ग्रोथ में हमने इन गाइडेंस की हेल्प दी है, उसको सपोर्ट किया। इसको हम थोड़ा ज्यादा फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर एक जॉब फेयर करेंगे, जहां हमारे पाकिस्तान के और पॉसिबली गल्फ रीजन के जो मेजर एम्प्लॉयर्स हैं उनको फिजिकली यूनिवर्सिटी कैंपस में लेके आएंगे, और जो कुछ एम्प्लॉयर्स यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में हैं उनको हम ऑनलाइन उस जॉब फेयर के अंदर इंक्लूड करेंगे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं उनका लिंक डेवलप हो उनके साथ। एंड ऑल्सो वुड लाइक टू शोकेस टू द एम्प्लॉयर्स दैट यूनिवर्सिटी हैज सच एंड सच वंडरफुल प्रोडक्ट्स कमिंग आउट एंड दे कैन यूटिलाइज देम। एक ये है। दूसरा हमारा ये है कि जो हम हमारे सीनियर गाइडेंस बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस्ड हैं, both in the government industry as well as in the non-profit sector, हम उनको ऑलरेडी हमने नेटवर्क में बहुत से इंक्लूड किए हुए हैं। इस नेटवर्क को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, उस नेटवर्क में उनकी सपोर्ट हासिल करेंगे कि व्हाट दे कैन सपोर्ट एंड फैसिलिटेट एंड हेल्प द कादिर यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड। तो इस तरह इंडस्ट्री और इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनको जोड़ना है, लिंक करना है, और आई थिंक ये लिंक करने का रोल हम गाइडेंस प्ले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथी कायदियंस ने बहुत अच्छे अच्छे सवालात भेजे हैं, और पैनल का खसूसी शुक्रिया कि वो उनके तफसीली जवाबात दे रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अहम बात यह है कि कादिर यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी होने के अलावा एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स को और वगैरह को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा करिकुलम जो है वो कुछ डेटेड है, कुछ पुराना हो गया है। तो इस करिकुलम को और इस अपडेट करने के लिए और उसके स्टैंडर्ड को दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ मैच करने के लिए आप लोगों के जहन में क्या प्लान है? आप इसे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, और वंस अगेन इसका मैं ही जवाब देना चाहूंगा जरा, क्योंकि आई एम प्राइवेट टू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। पिछले जो पैनल है उसमें भी ये डिस्कस हुआ था। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पिछले 2 साल एक एक्सरसाइज की थी। तो 2023 में एक अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी रिवीजन होके आई। अब जो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का करिकुलम है फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल फील्ड्स एंड ऑल डिसिप्लिन्स, वो टोटली रिवैम्प हुआ है, और फॉल 2023 से पाकिस्तान की पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तमाम उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। जस्ट टू, आई एम नॉट गोइंग टू एकेडमिक डिस्कशन, बट जस्ट टू कंपेयर इट, कि अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को देखें तो वो एक डिफरेंट मेन्यू देते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में जाएं तो करिकुलम चेंज होता है, डिफरेंट। दिस इज द डाइवर्सिटी। तो जनरली जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का, हायर एजुकेशन कमीशन ने उसको पिकअप किया है, और जो अंडर ग्रेजुएट स्टडी है उसको, उसका जो बेस है उसको ज्यादा ब्रॉडन किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनको ह्यूमैनिटीज को भी एक्सपोज किया जाए, आर्ट्स को भी किया जाए। इसी तरह जो ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या सोशल साइंसेज के हैं, उनको नेचुरल साइंसेज में जैसे एनवायरमेंटल साइंस है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी तरफ एक्सपोज किया जाए। फिर आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में कम्युनिटी एंगेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी। अब जो नया करिकुलम है उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक पूरा 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, which is not a study course in the classroom. It is a community engagement. The students will have to go into the community and provide some service, and they will be graded on that. So ये एक लंबी डिस्कशन है, but I think a step has been taken. और अब हमारा रोल ये होगा कि as Quaidians on the platform of Quaid-i-Azam University Alumni Association, हम इस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और आई थिंक उसका फायदा सिर्फ कादिर यूनिवर्सिटी को नहीं होगा, बल्कि जो बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, नॉर्मली पब्लिक यूनिवर्सिटी में ये ज्यादा डेफिशिएंसी होती है
तो मोस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी लाइक पेशावर यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें से बेनिफिट करेंगे। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर एक कंटिन्यूस एफर्ट चलती रहेगी। और क्यूरिकुलम कभी ऐसा नहीं होता कि आपने डिजाइन कर दिया तो बस फॉर गुड हो गया। curriculum development is a continuous activity और ये चलती रहेगी। Once again, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का चैप्टर है, we look forward to them because they are sitting at the right place। वो जो एडवांस्ड करिकुला हैं जो नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, हम चाहेंगे कि वो सपोर्ट हमें मिले। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके पास ये फंडिंग भी अवेलेबल है, दे कैन कवर द ट्रैवल ऑफ देयर एक्सपर्ट टू कम टू पाकिस्तान। तो ऐसा की पॉसिबिलिटी है तो हम चाहेंगे कि वो हम यूटिलाइज करें। लोकल हॉस्पिटलिटी हम दे देंगे, वो लोग आए, हमारी फैकल्टी को डेवलप करें, करिकुलम को डेवलप करें। वंस अगेन माय पॉइंट इज दैट आवर गाइडियंस सिटिंग इन नॉर्थ अमेरिका और फॉर दैट मैटर इन यूरोप, दे कैन प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन दैट। और हम एलुमनाई एसोसिएशन प्लेटफॉर्म से बड़ा एक्टिवली उनके साथ इंटीग्रेट करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और उसका बेनिफिट। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है कि हम अपने अल्मा मैटर को और बेहतर करें, जहाँ पे जो भी है जितनी भी हेल्प कर सके इंशाल्लाह हम करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, दूसरा ये है, मेरा सवाल ये है कि जो अभी तक मेरे ख्याल में पिछले दिनों से हम सारे के सारे लोग अफेक्टी हैं, और मैं हुसैन साहब को और बाकी पैनल्स को भी तंग करता रहा हूँ बगाए बगाए कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन इश्यू, यूनिवर्सिटी का, एलुमनाई मैटर्स का, मतलब कि स्टूडेंट्स का जो चीज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम 18वीं सदी में कर रहे हैं चीज़ें सारी। हालांकि खैर, जो क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप what strategy and collaborative efforts do you envision employing to ensure effective communication and cooperation between alumni association, student body and university administration? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये आसानी के साथ स्मूथली रन कर सकें, इसका तो मैं तो कहता हूँ इसका इशू होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप इन्हें आपस में कैसे कोलैबोरेट करेंगे, एलुमनाई को, स्टूडेंट को और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को? प्लीज। मैं इसमें जरा दो पार्ट में इसका आंसर देना चाहूंगा। पहला आंसर ये है कि जो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन का लैक था और जो प्रॉब्लम्स भी आए, अभी तक बहुत सारी डाटा स्टिल वेरीफाई नहीं हो सकी, उसके दो रीजन हैं। एक रीजन तो ये है कि कायदे यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी कैपेसिटी नहीं है, उनका कोई डेडिकेटेड ऐसा सेंटर या डेडिकेटेड ट्रेन स्टाफ नहीं है जो उसको डील करे। अच्छा, हमारे पास इंटरेस्टिंगली दिस इज अ डायलेमा ओवर हियर, और यू कैन से इट इज अ आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि हमारे पास कैपेसिटी है, हम हेल्प कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम कंपीटिंग पैनल हैं तो वी डिडंट वांट टू बी सीन ऑन द अदर साइड ऑफ द नेट एज वेल। तो हम अभी खामोश हैं, लेकिन हमारे पास पूरा प्लान है कि इसको हमने कैसे ऑटोमेट करना है और कैसे इसको सपोर्ट करना है। तो एक पॉइंट ये था कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेडिकेटेड ट्रेन कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ईयर 2000 तक यानी 1999 तक का जो रिकॉर्ड है वो मैनुअल रिकॉर्ड है, और जब बिल्डिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नई बनी शिफ्ट किया तो वो कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, तो अब वो मैनुअली जाकर रिकॉर्ड को देखना बहुत मुश्किल है। 2000 से ऑनवर्ड जो है वो कंप्यूटराइज है। तो हमारा एक टारगेट ये है कि जब हम एलुमनाई एसोसिएशन में हमारा पैनल बिल करके आता है तो हम अपने रिसोर्सेज से मैन पावर यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेंगे दो पर्पसेस के लिए। एक तो जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आइंदा के लिए भी कंटिन्यूस होगा, तो एटलीस्ट 2-3 पीपल का एक छोटा सा यूनिट हो जो प्रॉपर्ली ट्रेन हो, जो ये काम सारा इसको डिजिटाइज करे। सेकंड हमारा होगा कि जो यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट डेट से लेकर 1999 का जो रिकॉर्ड है उस सारे को कंप्यूटराइज किया। इसमें कुछ मुर्तजा नूर साहब अगर ऐड करना चाहें तो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ज्यादा तो मैं चाहता हूँ। नहीं सर, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है और हमने वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, इसी वजह से इसकी डेट हमने एक्सटेंड भी करवाई। वी वर आल्सो इन कांटेक्ट विद द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये पहली दफा ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, कैपेसिटी का भी इशू है, सारा कुछ है। लेकिन जब ये फॉर्मल एक एलुमनाई एसोसिएशन आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला इस इशू को हम बड़े इफेक्टिवली एड्रेस भी कर लेंगे। और हमारे माइंड में काफी आइडियाज भी हैं, अभी भी हम यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ओवरसीज का बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था, लाइक यानी कि उनको कैसे हम एज ए वोटर बड़ा इफेक्टिवली इन्वॉल्व करें। तो वी रेज दिस इशू के ऑनलाइन जो वोटिंग है वो होनी चाहिए, ताकि जब हमारे ओवरसीज काइडियन है वो भी इफेक्टिवली और यहाँ पे पाकिस्तान में भी रिमोटली वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला ये हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके और इस प्रोसेस को मजीद ट्रांसपेरेंट भी बनाएंगे
मजीद इफेक्टिव भी बनाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह वी आर जस्ट वेटिंग एक फॉर्मल अलुमनाई एसोसिएशन इसको टेक ओवर कर ले फिर ये चीजें, क्योंकि अभी भी रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। आई टोटली एग्री विद यू कि हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि कम से कम जो टोटल जो हमारे कायदीन हैं उनकी 30 to 40% रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। देन इट वुड बी गुड साइज ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के इसमें, और एक नंबर भी अच्छा होगा। लेकिन अगर कम लोग होंगे तो वो फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो होगी उस प्रोसेस से बाहर होगी। तो वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम इसमें कर सकें, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कंटेंडर के तौर पर थे इस वजह से इतनी चीजें हम इफेक्टिवली हमने कोशिश तो की है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आफ्टर अगर हम हमारे पैनल को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी विल बी एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम इन वेरी इफेक्टिव वे इंशाल्लाह। थैंक यू। इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज हमारे नॉर्थ अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं फिदा साहब, फैसल साहब, वो अक्सर बात करते हैं कि स्पेसिफिकली बताएं क्या गोल है। तो ये क्वांटिफाइबल गोल है जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। इस वक्त तक यूनिवर्सिटी के अप्रॉक्सीमेटली 85,000 ग्रेजुएट्स हैं हमारे, और इस वक्त जो आपने देख रहे हैं नंबर, इट इज समवेयर बिटवीन 6 to 7,000 जो रजिस्टर हो गए, वेरीफाई होकर निकल रहे हैं, विच इज ए वेरी स्मॉल नंबर। हमारा वेरी स्मॉल। टारगेट ये है कि इस इम्पोर्टेंट चैलेंज को हम एड्रेस करें, और बाय द एंड ऑफ द ईयर जब हम अगली एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करें तो ये 85,000 स्टूडेंट जो है बाय एंड लार्ज ये सब के सब प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो, ताकि नेक्स्ट साइकिल में जब जाएं तो ये वाला प्रॉब्लम ना। तो ये हमारा टारगेट है तमाम 85,000 ग्रेजुएट्स को रजिस्टर करना। आपने कमेंट करता हूँ, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा। और हम आपसे जो है ना पूछते हैं कि आपका जो जो सोच होती है तो वही आपका फ्यूचर हमारा डिटरमिन करता है। हम इसलिए आपको जो है ना खुरच रहे हैं साथ साथ, ताकि पता चले कि आप क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, जैसे मैंने पहले शेयर भी किया था, कि अभी तो है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से वो जो स्टूडेंट्स का शॉर्ट एक लाइन का जो डेटा इंफॉर्मेशन है उसी को एलुमनाई में ट्रांसफर कर दें, दैट्स ऑल इट विल टेक। उसके लिए अलग पिछला जो मैनुअल है उसका तो चाहिए होगा, लेकिन जो नए वाला है उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए। एक फाइल है जो कॉपी इधर से करनी है उधर रख देनी है, और दैट्स ऑल इट इज, एंड इट शुड बी डन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटरव्यून ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। तो अब फैसल साहब आपसे पूछते हैं। इसमें हमारी डिस्कशन में एक ऑप्शन ये भी आया है कि जब स्टूडेंट एक ग्रेजुएट होता है या एडमिशन होता है तो उसको कोई अलुमनाई की रजिस्ट्रेशन उसी वक्त हो जानी चाहिए, और उसको उसी वक्त एक ईमेल एड्रेस एटलीस्ट अलॉट हो जाना चाहिए जो उसको सारी उम्र काम आए एज अलुमनाई और इवन वोटिंग में। जी जी बिल्कुल। और इस सिलसिले में बहुत सी और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटीज में, और हमें अवेलेबल हैं, हमने देखी हैं बीइंग एलुमनाई ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज एज वेल। तो वी कैन शेयर दोज आइडियाज एज वेल विद द एडमिनिस्ट्रेशन हाउ टू हैंडल दिस। अच्छा, थोड़ा सा आपके इंट्रोडक्शन की तरफ वापस आते हैं। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया था, स्टूडेंट काउंसलिंग का। तो ओवरऑल स्टूडेंट वेलबींग के हवाले से वो बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़ा सा उसको फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के ऊपर, जो जनरल काउंसलिंग से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स को कैसे मेंटोर किया जाए कि उनकी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, उनके जॉब जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा बेहतर हो जाएं। तो इस सिलसिले में आपके पास क्या आइडियाज? अच्छा, इसमें वंस अगेन मैं ये कहूंगा कि वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। हमने ये कैरियर काउंसलिंग का काम बहुत ज्यादा किया, और एक आपने देखा वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी चेंज आई आफ्टर कोविड। लोगों ने डिस्कवर किया कि यार ऑनलाइन बहुत कुछ हो सकता है, एंड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इन द एंटायर वर्ल्ड ये बहुत कुछ हुआ। हमने ये मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसमें वी ब्रिंग इन दी गेस्ट स्पीकर्स फ्रॉम विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड, और अभी तक हमने 30 मेंटोरशिप प्रोग्राम किए हैं जिसमें जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, गेस्ट स्पीकर्स हैं, दे टॉक टू द स्टूडेंट्स और द फ्रेश ग्रेजुएट्स, और उनको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं करियर काउंसलिंग के लिए। इसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन करना है, ये एक्टिविटी हम कंटिन्यू रखेंगे, और हमारा ख्याल है कि हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, और इसको में भी पहले फैकल्टी वाइज एक्सपेंड करेंगे, एक पर्टिकुलर फैकल्टी की स्टूडेंट्स की गाइडेंस, और फिर और जैसे नेचुरल साइंसेज है या सोशल साइंसेज है या लॉ ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके लिए उनके जो करियर के लोग हैं, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनको इन टच करें। आपको पता है कि आजकल के दौर में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसमें ट्रैवल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, बहुत सारी आसानियां हैं। ये हमने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हुआ है, हम 30 मेंटरशिप प्रोग्राम कर चुके हैं। बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आई थिंक वी कैन इजीली रन सेवरल नंबर ऑफ सच career counseling sessions
जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो उनको गाइड करें। और इसका कनेक्शन एक दूसरी तरफ भी है जो मैंने पहले मेंशन किया था, वी प्लान टू होल्ड ए वेरी बिग जॉब फेयर एट द यूनिवर्सिटी। तो वो जो कैरियर काउंसलिंग का पार्ट है वो जॉब फेयर के अंदर भी पूरा होगा। तो उसमें जो HR के लोग आते हैं डिफरेंट कंपनी से, so they have an ample opportunity over 2 or 3 days of the fair तो अपने बूथ्स बनाए, इंटरेक्ट करें स्टूडेंट के साथ, और वहां से फिर इंटर्नशिप भी जनरेट होती है और वहां से फर्स्ट प्लेसमेंट भी जनरेट होती है। तो इंशाल्लाह इस एक्टिविटी को हम सपोर्ट करें। जी, मैं डॉक्टर साहब के पॉइंट को ऐड करते हुए, हमारा एक और भी प्लान है जो कि हमने काफी हद तक यानी उसमें डिस्कशन भी हो गई है। हम ये चाहते हैं कि जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, हर 10 स्टूडेंट्स के लिए एक हम मेंटोर करें, और वो मोस्ट प्रोबेबली एक सीनियर गाइडियन होगा जो कि और वो उनको जो 10 स्टूडेंट्स की ग्रुप के लिए एक मेंटोर होगा, एक एकेडमिकली होगा जो कि कैंडिडेट में से होगा, एक एक्सटर्नल होगा जो मोस्ट प्रोबेबली गाइडियन होगा उस रेलिवेंट फील्ड में, जो उनको मुख्तलिफ जॉब प्लेसमेंट में, उनकी इंटर्नशिप्स में, उनकी सॉफ्ट स्किल्स को इनहांस करने में, कि सीवी कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल नेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो वो 10 लोगों को कम से कम जब लुक आफ्टर कर रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह उसमें से 50-60% भी अगर बच्चे हमारे उनको गाइडेंस मिल जाती। सबको जॉब की जरूरत नहीं, किसको स्टार्टअप्स के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, कुछ को फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम वो स्टूडेंट्स का टेस्ट देकर अभी हमने एक परफॉर्मा भी डेवलप किया है जो कि हम सीनियर गाइडेंस के साथ भी करेंगे। आप किन फील्ड्स में हमें असिस्ट कर सकते हैं मेंटोरशिप के हवाले से, वो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो हम यूनिवर्सिटी के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो ये इफेक्टिवली इंशाल्लाह जो आउट गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि पोटेंशियल हमारे एलुमनाई भी हैं, उनकी हम प्लेसमेंट में और उनकी कैरियर काउंसलिंग में इंशाल्लाह ये एक स्टेप जो है विल बी ग्रेटली हेल्पफुल। अच्छा, इसमें मैं जरा ऐड करना चाहूंगा, ये करियर काउंसलिंग और एडवाइजमेंट ट्रेडिशनली ये होता है कि लोगों को गाइड करें कौन से करियर में जाना है, जॉब कहाँ ढूंढनी है, प्लेसमेंट कहाँ होनी है, इंटर्नशिप कहाँ होनी है। लेकिन आपने देखा है कि वर्ल्ड वाइड एक नया ट्रेंड है लास्ट फ्यू ईयर से कि देयर इज अ मूव टू ब्रिंग मोर एंड मोर ग्रेजुएट्स इनटू देयर ओन बिजनेसेस, कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आए, वो अपने बिजनेसेस को सेटअप करें। तो कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम पिछले कई सालों से हेल्प और सपोर्ट भी कर रहे हैं, विच इज दी हेल्प एंड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ आवर टाइम एंड एनर्जी। हमारे जो कायदीन हैं वो अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, अपनी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा गोल जो मैनिफेस्टो में ये है कि इस इंक्यूबेशन सेंटर को फर्दर एस्टैब्लिश करना है, स्ट्रेंथन करना है, और इसको जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, अगर उनके अंदर कुछ एंटरप्रेन्योरियल जज्बा है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी दें, तो अपने काम के लिए अपने पाँव पर खड़े। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि बजाय कि आप अपने लिए एक जॉब ढूंढें, आप एक ऐसी एक्टिविटी करें कि आप 10 लोगों को जॉब दें या 20 लोगों को जॉब दें। तो ये हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी है, एंड वेदर वी विन और नॉट, इसके अलावा भी हमारा ये गोल है कि हमने ये एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटी है इसको फुल्ली सपोर्ट करना है। एंड इट इज नॉट मेंट फॉर बिजनेस और इकोनॉमिक स्टूडेंट्स ओनली, फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज ने बड़ा सक्सेसफुली इंक्यूबेशन सेंटर चलाए हैं, और उसमें जो लोग फॉर एग्जांपल आर्ट्स से रिलेटेड हैं, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हैं, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, उन लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और ये लोग अपना ग्रुप बना के अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इसको भी हमने सपोर्ट करना है। बी कंसीडर दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ करियर एडवाइजिंग और करियर काउंसलिंग। बहुत अहम टॉपिक है ये, और इस पे आपके तफसीली जवाब के लिए शुक्रिया। मैं थोड़ा सा और इसमें गहराई में जाना चाहूँगा। हमारी कई कायदीन ख़वातीन ने ये सवाल पूछा कि और जो कि हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच करियर काउंसलिंग का ये होता है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनको गाइड किया जाता है कि वो इंडस्ट्री में कैसे ट्रांजिशन करेंगे। जैसे मुर्तजा नूर ने अभी बात की कि उनको सीवी के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए कोचिंग की जाती है। हमारे कल्चर का एक खास हिस्सा ये है कि ख़वातीन कायदीन जब ग्रेजुएट होती हैं तो वो थोड़ा अरसा ब्रेक लेती हैं, और उसके बाद अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने के बाद वो करियर में वापस आना चाहती हैं। तो उसके लिए कुछ खास करियर काउंसलिंग की गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आप उस स्टेज के लिए कुछ आइडियाज हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हमारा ऐसा है कि जो मैंने पहले जिक्र किया था, हमारा जो स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर है जिसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है, उसमें 3 पार्ट्स हैं। इसमें एकेडमिक एडवाइजिंग है, करियर एडवाइजिंग है और पर्सनल काउंसलिंग है।
ये पर्सनल काउंसलिंग वाले हिस्से में आता है कि जो अलुमनाई एसोसिएशन में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की ग्रेजुएट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, खातन है मोस्टली वो, उनके साथ ये बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है। और जो आपने ये पॉइंट आउट किया, ये एग्जैक्टली ये इशू डिस्कस हुआ कि अगर हमारी ग्रेजुएट्स हैं वो ग्रेजुएट होने के बाद 1, 2, 3 साल के गैप के बाद आते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे, नाउ दे आर रेडी टू गो इनटू करियर, तो उस गैप के साथ कैसे हैंडल हों? तो उसमें एक तो उनको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, दूसरा उनको साइकोलॉजिकल एडवाइस भी चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं माइंड में कि हम शायद पीछे रह गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना टाइम अवेलेबल करेंगे इसके लिए, और ऐसी ख्वातीन जिनको ये जरूरत हो हमारे कायदीन में से, उसके लिए हम अपने वेबसाइट के ऊपर भी स्पेशल एक सेक्शन बनाएंगे कि वो अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पे डालें, और हमारी जो फीमेल साइकोलॉजिस्ट उनके साथ बैठ के उनको एडवाइस करेंगे। फिर जो प्रोफेशनल लोग इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, वो भी एडवाइस करेंगे। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। दिस आल्सो इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, और ये ऑनगोइंग होगी, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, ये आगे चलती रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इस सिलसिले में सर आपके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे भी हम बेनिफिट करना चाहेंगे। जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे कि 2 टॉपिक जो हैं वो सबसे ज्यादा हीटेड हैं, जो सारे ग्रुपों से हमें पूछे गए हैं या क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो फाइनेंशियल पे तो हमारी बात हुई है, तो अभी जो मैं क्वेश्चन करता हूँ वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएगा कि डू यू सी एन एक्टिव रोल ऑफ करंट फैकल्टी मेंबर ऑफ इन एलुमनाई अफेयर्स? इफ यस, देन व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? मसलन के इसे आप इस तरह से लें कि अगर कोई करंट यूनिवर्सिटी का टीचर है या मसलन स्टाफ है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बंदा है, जो क्योंकि यूनिवर्सिटी मैटर्स को कर सकते हैं, कहने का मतलब है जो भी बंदा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को अफेक्ट कर सकता है, आया कि उससे जो हमारी एसोसिएशन बनेगी उसमें किसी ना किसी तरह से रोल अदा करना चाहिए, जिसकी इंटरेस्ट कहीं और हों ज्यादा। मसलन की दोनों तरफ होती हैं फीलिंग तो है, लेकिन उसको कैसे आप उसे कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल करें हम इसे? अच्छा, मैं ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, और मैंने पिछली जो रिकॉर्डिंग्स हैं और जो पिछले सेशन वो मैंने देखे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के पर्टिकुलरली, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अभी सोचा ये जा रहा है कि ये कायदे यूनिवर्सिटी है, ये एजुकेशन में है, और ये अलुमनाई में एक बंदा आएगा ये भी एजुकेशन में है, तो देयरफॉर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है। आप उसको उलट कर दें इस पॉइंट को तो दूसरी पिक्चर नजर आएगी। कायदे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में है, ये बंदा भी एजुकेशन में है, और ये अलुमनाई में आ गया, तो मैं भी वो यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा हेल्प करेगा, ये भी तो एक भी हो सकता है। बट लेट मी गो बैक। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली ये है वेयर इंटरेस्ट इज डिवाइडेड। अगर एक पाई है 100% और उसमें से यूनिवर्सिटी को कुछ जा रहा है और दूसरा बंदा उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए ले जाए, देन इट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और पुट इट अनदर वे, if there is a benefit of one party at the cost of loss to the other party, then this is a conflict of interest. इसको अगर हम अलुमनाई में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कि if a panel wins और उसमें वो ऐसे बेनिफिट ले रहे हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को लॉस हो रहा है, then it will be conflict of interest. So I think if this concept is clear, now let's look at it. जो पैनल हमारा अगर जीत के आता है तो हमारा पैनल पिछले 24 ईयर से यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूट ही कर रहा है, कुछ ले नहीं रहा। आपके अर्लियर एक क्वेश्चन में आया था और बड़ा जरूरी था, आपने अच्छा किया वो क्वेश्चन किया कि क्या हमने यूनिवर्सिटी से कोई फंड लिए या किसी गवर्नमेंट बॉडी से लिए या किसी और एजेंसी से लिए, तो उसका आंसर था जीरो, नो बेनिफिट कमिंग। और अगर कोई बेनिफिट आ नहीं रहा तो यूनिवर्सिटी को कोई लॉस भी नहीं है। तो देयर इज नो ए लॉजिकल सेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कायदा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। अब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, मैं एजुकेशन सेक्टर में आया हूं, मैं यूनिवर्सिटी का हेड हूं, मैंने उसको एस्टैब्लिश किया। मैं अपने दिल में ये समझता हूं कि मैं ये इसलिए कर पाया बिकॉज आई वाज ए ग्रेजुएट ऑफ कायदा यूनिवर्सिटी। कायदा यूनिवर्सिटी ने मुझे वो इंटेलेक्चुअल इनपुट दी जिसको यूज करके मैंने ये फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर बनाया। तो ये क्रेडिट भी कायदा यूनिवर्सिटी को जाता है। मैं फील करता हूं कि मुझे पे बैक करना है अपने अल्मा मेटर को। तो आई डोंट सी एनी लॉजिकल और क्रेडिबल रीजन व्हाई दिस शुड बी कॉल्ड ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग हैं, इमेजिन करें कि मिस्टर एक्स he did MSc from कायदा यूनिवर्सिटी, तो वो अब ग्रेजुएट हो गया तो वो कायदीन हो गया।
अब उसने एमफिल और पीएचडी किया और वापस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में हायर हो गया, नाउ इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी फैकल्टी। क्या उसको वोटिंग का राइट है या नहीं? आई थिंक उसको वोटिंग का राइट है। सेकेंडली, क्या उसको जिस पैनल को, जिस प्रोग्राम को पसंद करता है उसको प्रोपेगेट करने का राइट है? आई थिंक वो राइट है। तो आई थिंक हम ये लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि जो फैकल्टी है वो किसी एक कैंडिडेट को प्रेफर या अपोज ना करे, उनकी चॉइस है कि जिसको चाहे वो फेवर करें। अब जो एक बात ये आ रही है जिसकी कॉन्टेक्स्ट में आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, आई एम हैप्पी कि ये क्वेश्चन सामने आया। आपको जो इन्फॉर्मेशन आई है, क्वेश्चन आया, वो ये था कि जनाब कुछ फैकल्टी मेंबर एक पर्टिकुलर पैनल को या यूं कह लें कि हमारे पैनल को सपोर्ट करें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस को विजिट करें तो ऐसा नहीं है कि एक ही पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से फैकल्टी मेंबर हैं जो पैनल 2 को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पैनल 3 को भी कर रहे हैं, किसी हद तक 4 को भी कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ए नेचुरल फिनोमेना। आई विल गो बैक टू द सेम प्रिंसिपल that any faculty member who graduated from Quaid-i-Azam University is a QAU, is an alumni, and he or she has the right to vote and has the right to propagate the ideas of any panel that they like. So I think this should be sufficient enough to cover this main issue of conflict of interest. जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जो क्वेश्चन वो ये है जो जिसको आपने खुद भी मेंशन कर दिया। बात ये है कि जैसे देखिए बाज़-औक़ात होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक वो चीज़ होती है गवर्नमेंट की। मैं बात करूं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो लोग होंगे फॉर एग्जांपल जो बैठे हैं वो यूनिवर्सिटी के एलुमनाई तो जरूर हैं, वो उनकी वेलफेयर भी होगी, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की, उनका काम है पॉलिसी इन्फोर्स करना। वो हो सकता है बाज़ औक़ात हर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थोड़ा बहुत है वो चीज़ आर्म ट्विस्टिंग वाली बात आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि वो वजह ये है कि ऐसा वो इन्फ्लुएंस कर सकें, किसी को प्रेशर कर सकें कि जी वन वे और अदर वे, वो जो चीज़ है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आती है। ठीक है। साहब आपने वंस अगेन इसको उसी क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में बड़ा अच्छा पेश किया, मैं उसको भी जवाब। अब देखिए आप ये सोच रहे हैं कि एक बंदा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, गवर्नमेंट अथॉरिटी में है, तो वो कायदे यूनिवर्सिटी के किसी काम पे आर्म ट्विस्टिंग करके उस काम को रोक भी सकता है। तो हम ये में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या पावरफुल अदारा, स्कूल के जो एम्प्लॉई हैं वो एक डिफरेंट चीज है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो ना गवर्नमेंट के अदारे इस तरह की जो वो, लेकिन वो इस पोजीशन में है कि यूनिवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करें। बिल्कुल, मैं वही सी बात कर रहा हूँ कि अगर वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और वो यूनिवर्सिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो माय व्यू विल बी मोर ऑप्टिमिस्टिक। आई विल से द glass is half filled with water rather than saying it is half empty. मेरा व्यू ये है कि ऐसा अथॉरिटी की जगह पर बंदा बैठा होगा तो वो सपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी को, ना कि रोकेगा। अब ये मैं फिलोसॉफिकली नहीं कह रहा, इट इज बेस्ड ऑन माय पास्ट मेनी इयर्स ऑफ इंटरेक्शन विद काइडियंस। मैंने ये देखा है कि इन्फ्लुएंस की जगहों पे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, हायर एजुकेशन कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी के अंडर आती है, तो प्रेसिडेंट हाउस में जो स्टाफ के लोग बैठे होते हैं सिविल सर्विस के, उनमें जो हमारे कायदीन है 100% द टाइम मैंने देखा है कि दे हैव कम आउट टू सपोर्ट द यूनिवर्सिटी रादर देन इन्फ्लुएंस द यूनिवर्सिटी इन अ नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक आपके पैनल के हवाले से सवाल पूछना चाहूंगा कि डिफरेंट पैनल्स ने डिफरेंट नंबर ऑफ पोजीशंस के लिए लोग नॉमिनेट किए हैं। आपके पैनल में टोटल कितने लोग हैं और उसमें कितनी खवातीन हैं? जी, हमारे पैनल में 20 लोग हैं क्योंकि 20 पोजीशंस अवेलेबल हैं, और इसके अंदर हमारे पास, लेट मी जस्ट काउंट इट राइट नाउ, 8 है, 8 आउट ऑफ 20। तो एक किसी पैनल में किसी ने 40% कहा था, हमारा भी वही 40% है। तो वैसे रिजर्व है ना, वो रिजर्व है क्योंकि खातिन की सीट रिजर्व है। नहीं वो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं क्योंकि वो सवाल तो आते हैं ना हमारे यहाँ, तो देखो वो ख्वातीन आती हैं तो इस वजह से वो रिप्रेजेंटेशन उनकी उसी तरह से होने, इसलिए बात कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल हम एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो माइंड में है आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है, इट इज वेरी गुड। देखे ना, कम्युनिकेशन कोहेरेंस है, टेलीपैथी जा रही है, बिल्कुल सही कहा। इसमें ये जरूर मैं ऐड करूंगा कि रिजर्व जरूर है, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि वो जो ख्वातीन है वो कुछ इस तरह के पाकिस्तान के इस तरह के एरिया से हों जहां से लगे कि ये वाकई ख्वातीन की रिप्रेजेंटेशन हुई है। बलूचिस्तान से हमारे पास खातून है, हमारे साथ सिंध से खातून है हमारे पास। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से हमारे पैनल में नजर आएगी डाइवर्सिटी, कल्चरल भी
और फिर इस तरह से जेंडर की डाइवर्सिटी भी और इंक्लूजन भी। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ज्यादातर जो है किसी एक जेंडर या दूसरे जेंडर के बजाय हमें उसके कंपिटेटर उस पे जाना चाहिए, उनकी एबिलिटीज को यूटिलाइज करना चाहिए रेदर देन उनकी जेंडर को। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कायदीन जो फीमेल्स हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल, और उनसे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की एक डिफरेंट वजह है, लेकिन उनको उस वजह से लाना चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। बेशक सही कहा। एक चीज ऐड कर दूं कि हमने एक जो इनिशिएटिव लिया था वो ये लिया था कि हमने एक एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई है और एक प्रोफेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई है। उसमें हमारी इस वक्त तकरीबन 50% जो खवातीन उसमें शामिल हैं, लीडिंग वाइस चांसलर उसमें शामिल हैं और वो लीडिंग कायदीन शामिल हैं, अक्रॉस द ग्लोब शामिल हैं, जो कि हमें एडवाइस भी कर रही है और एक थिंक टैंक के तौर पर हमारे साथ काम करेंगे। एक तो यहाँ पे तो हमारे लिए एक रिस्ट्रिक्शन है ना कि पैनल्स के लिए एज का भी आपका ये कितनी 20 इयर्स के लिए आपका ग्रेजुएशन हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना, तो हमने उनको उस तरीके से इन्वॉल्व किया है। तो ये वी बिलीव इन वीमेन एम्पावरमेंट। और वैसे भी पाकिस्तान में जो है, आपको मैं ये शेयर भी कर दूं कि जो वीमेन की एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर में, दैट इज 47%, विच इज वेरी वेरी इंकरेजिंग। और इंशाल्लाह हम अपने इसमें बड़ा इंश्योर कर रहे हैं। इसलिए आपने फाउंडर ग्रुप की जो मुख्तलिफ आपने तकरीबात भी देखी, हमने जो हमारी कंपेन भी जारी है, हमने तो खैरपुर में भी हमारे पास खवातीन होती हैं, बलूचिस्तान में भी हमारे पास खवातीन आ रही होती हैं, तो वो हम इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल सवालात के आपने बहुत अच्छे और तफसीली जवाबात दिए। तो मैं फाउंडर ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें, तो उसके बाद खालिद साहब हमारी तरफ से रैप अप करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि न सिर्फ हमारे पैनल के लिए बल्कि तमाम पैनल्स के लिए जो कायदे यूनिवर्सिटी नॉर्थ अमेरिका ने ये सारा टाउन हॉल मीटिंग्स अरेंजमेंट किया, दिस इज अ वंडरफुल थिंग। आई थिंक ये एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिससे जो डिफरेंट पैनल के लोग हैं अपना मैसेज आगे पहुंचा रहे हैं, अपने मिशन को, अपने मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आई थिंक द व्यूअर्स कैन जज एंड मेक ए मेरिट बेस्ड डिसीजंस। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली हमारी जो अलुमनाई एसोसिएशन के साथ जो अटैचमेंट है वो ईयर 2000 से है, और यही एक रीजन है जो हमने अपने पैनल का नाम फाउंडर्स ग्रुप रखा है। तो हमारी जो पास्ट 24 ईयर्स की स्ट्रेंथ है उसकी बेसिस पे हम इस इलेक्शन में जा रहे हैं। और हमारा व्यूअर्स से और जितने कायदीन हैं उनके साथ गुजारिश ये है कि आपने माइंड में कंपैरिजन करके देखें कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हमने जो बड़े अच्छे चुपते हुए भी सवाल थे, तेज भी थे, डीप भी थे, उनके हमने जिस तरह अपनी तरफ से आंसर दिए उनको एवेल्युएट करें और अपने माइंड में खुद एक मेरिट बेस्ड डिसीजन करें कि वोट किस पैनल को देना है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक मैसेज साथ ही भी देना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी बात की थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हू विंस द इलेक्शन, हम सब कायदे थे, हम सब ने एक साथ चलना है और इंशाल्लाह हम जीत गए तो सब पैनल को साथ लेके चलेंगे, हम ना जीते फिर भी उनके साथ चलेंगे। हमने सब कायदे में एक ही रहना है। ये एक इलेक्शन की एक्टिविटी पैनल वाली सिर्फ इलेक्शन डेट तक है। Once election is over, we should join hands and be together as Qaidians of our own alma mater Quaid-i-Azam University. तो मेरा जो मैसेज है व्यूअर्स को ये है कि काइंडली अपने दिल में, अपने हार्ट में सोचें कि आपका वोट का हकदार कौन है। इंशाल्लाह आपका वोट हमारे मैनिफेस्टो की बेसिस पे फाउंडर्स ग्रुप को ही जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, खालिद साहब बोलने से पहले एक कमेंट करूंगा कि आपने चुपते हुए सवालों का जिक्र किया। चुपते हुए सवाल 24 को ज्यादा होंगे, बाय द वे, जस्ट बता दूं आपको। और ये है कि इसे करेंगे, और बाकी दोस्तों से भी सवाल है कि हमें सवाल भेजें उसके बारे में। लेकिन वो जो है चुपते हुए सवालों का इंतजार तब कीजिएगा ताकि सारे लोग आमने सामने हो इंशाल्लाह। पहले खालिद साहब प्लीज आप बोलें। उसमें मजा आया क्योंकि जो चुपते हुए सवाल हैं वो हमें भी एक मौका देते हैं कि जो सेंसिटिव इश्यूज में हम बात कर सकें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। तो आई थिंक इट इज वेरी हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये है कि मैसेज सबका पहुंचे, लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। आपके पैनल ने, आपने जो नॉर्थ अमेरिका का जो सेटअप है, चैप्टर है, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में हमें फायदा है और आई थिंक ये लॉन्ग टर्म है, ना सिर्फ ये कि इलेक्शन के लिए हमें फायदा हो रहा है, ये हमारी जो अब लिंकेज बन रही है
So this networking will continue, inshallah. 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 Thank you very much, everybody. And let's go towards the concluding the session. And before I go to conclusion, I just want to mention that we generally take break in the middle of the session. And today the conversation was so engaging that we forgot all that. But nevertheless, for break session, we tend to introduce our people, our board members, one by one. And today I wanted to introduce two of my members. Before we conclude this, can you share, Abel, the screen for me, please? So today, I want to highlight Arshad Bhatti Saab and Faisal Saeed Saab. Arshad Bhatti Saab currently working for a non-group in Canada, and Faisal Saab is also in Canada. And they are the backbone of our organization. Faisal Saeed Saab, specifically expert in artificial intelligence, and he's working in a bank, and he's in charge of the global IT department there. So they are responsible for keeping records, registration, and legal issues updated and current. And we are very grateful to have people like Arshad and Faisal with us. So with this, let's go towards concluding part. I just wanted to highlight one point here, actually 2 points. One is the conflict of interest. This is very important, and I hear your viewpoint. However, I feel that we as a Pakistani need to flush out and really understand what is the conflict. Wherever there is a conflict of interest, it's not one thing. They can shape 100 different shapes. And second point I want to highlight is from a potential winner of elections, any four of the panels could win. So I think if you look at the research done in the worldwide universities, whether it's Singapore, China, Korea, or America, or UK, or Europe, they actually focus on their issues which their societies are facing. On the other hand, I doubt it if our research, which is done within Pakistan, is generally focused on the issues which we are facing. Another issue which is part of this is the university is specifically Kazim University is funded with the public money, is coming from poor people. The question is, do we have a consideration of economic benefit which is coming from this university to the local community and the city and the country, and in the ranking process when we do ranking? So think about these points when you win the election and then continue your activities. With this, I really want to thank first the founder panel and their time at night in Pakistan to be able to come here and then share their thoughts and talk to our membership here. And then I want to thank my people, moderators, Fida and Faisal, and our board at large, that their willingness and their support provided for us to conduct these Zoom calls. This was a delightful experience for us. It was very interesting, and we learned in the process a lot more different things and different ways of doing things. And lastly, I want to thank the participants today and all the participants which have been attending these sessions for the last 4 weeks. And we have one last session in 2 weeks coming up, and I hope in that session there will be much more participation. Thank you very much, panel. Thank you very much, my board members. Thank you very much for the audience to listen and hear. The recordings will be available on YouTube channel. Thank you. Have a good day. Good night. Bye-bye. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Islam.